वेंट्रिकल? पढ़े क्या किसी ने? सी, this is what? This is lateral ventricle. They are 2 in number and they lies within the cavity of cerebral hemisphere. So this is lateral ventricle. फिर उसके बाद आपको ये क्या दिख रहा है पूरा कैविटी? ये this is third ventricle. ये कहाँ होगा आपकी? It is a cavity between 2 thalamus. And then lastly you have fourth ventricle here and it lies behind the pons and medulla in front of cerebellum. ये सबको पता है, इतना जनरल आइडिया है सबको. टुडे क्लासेस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. तो लैटरल वेंट्रिकल में क्या हॉर्न्स होते हैं? कल आपने सेक्शन में भी देखा कि वन हॉर्न इज एंटीरियर हॉर्न, वन इज पोस्टीरियर हॉर्न. सो सी, फर्स्टली सी दिस डायग्राम. अच्छा, कम्युनिकेशन बिटवीन बातें नहीं करिए आप, फैज बार बार बोलूं. फिर see, the communication between lateral ventricle and third ventricle is via interventricular foramen or foramen of Monro. So both are same thing. E नहीं आएगा इसमें, MONRO ही होगा. Foramen Monro and interventricular foramen. It is the communication between the lateral ventricle and the third ventricle. What is the communication between third ventricle and fourth ventricle? Cerebral aqueduct of Sylvius बोलते हैं इसको. So it is a communication between third ventricle and the fourth ventricle. And now the communication between the fourth ventricle and the subarachnoid cistern are foramen Megendii. Centrally जो central होगा वो foramen Megendii होगा, and दो both side में जो foramen होंगे these are foramen of Luschka. Clear है? इतना पता था आपको? पता था या नहीं? Lateral extensions of fourth ventricle are foramen of Luschka, while the median जो extension है which is communicating with the fourth ventricle with the subarachnoid cistern या space is the foramen of Megendii. So firstly जो आपका CSF है वो प्रोडक्शन कहाँ होता है? Lateral ventricle में. और उसका कैसे कम्युनिकेशन और सर्कुलेशन होता है एक और. अच्छा, ये डायग्राम समझने की कोशिश करना. फर्स्टली ये क्या है? व्हाट इज दिस? सेरिब्रम. विच सेक्शन? हॉरिजॉन्टल सेक्शन. ठीक है, अब इसमें देखिए आप, फटाफट आओ बेटा, आगे बैठ जाओ, पीछे नहीं जाओ, बैठो यहीं पे. Second photograph is of transverse section or horizontal section of cerebrum. So see, this is what? What is this structure? What is this? बताओ. Corpus callosum. ठीक है. And then central extension जो आपको दिख रहा है, what is that? What is this? जो septum like दिख रहा है, it is septum pellucidum. Then below जो ये थोड़ा सा elevated दिख रहा है, that is fornix. Then see, here is the, what is this? Collection of gray matter. बोलो, कल ही देखा है. Caudate. This is caudate nucleus. And then what is this? Thalamus. एक ही बोलेगा क्या? याद नहीं है क्या? कल ही देखा है आपने सेक्शन, देखा था या नहीं? हॉरिजॉन्टल सेक्शन जब आप देख रहे थे, यहाँ पे जो ये व्हाइट फाइबर्स आर ऑफ इंटरनल कैप्सूल. सो मीडियली इंटरनल कैप्सूल बाउंड्री इज फॉर्म अपर इन द अपर पार्ट बाय कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड बिलो बाय थैलेमस, एंड लैटरल टू इट देयर इज अ लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस. आवाज मत दो. So what is this? This is caudate nucleus, this is thalamus, this is lentiform nucleus, and this is the internal capsule. क्लियर है ये सेक्शन सबको? आपने कल लिविंग में भी इसका कैडेवर वो भी देखा है और इसमें भी आप देखिए एक बार. ठीक. नेक्स्ट ये जो फर्स्ट सेक्शन आपको दिख रहा है, दैट इज कोरोनल सेक्शन. क्या है ये? कोरोनल सेक्शन है. इसको कैसे कट किया है? ब्रेन को फ्रंट से कट किया है, जिसमें यू आर एबल टू सी एंटीरियर हॉर्न ऑफ एंड लैटरल वेंट्रिकल, एंड हियर इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम, सेप्टम पेलुसिडम एंड फॉर्डिक्स, एंड हियर इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस. हियर ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और वही जो पार्ट आप देख रहे हैं वही है. ठीक है. नेक्स्ट चलो, ये सेम डायग्राम है. इसमें देखो, फर्स्टली यू हैव कॉर्पस कैलोसम हियर. व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम?
it is the largest commissural fibers. Commissural fibers are what? It is the white fibers. They connect right cerebral hemisphere with the left cerebral hemisphere. हो गया? See, the connection between corpus callosum and with the fornix is what? This is septum pellucidum. Here is the presence of thalamus, and below that there is a hypothalamus. Then you are able to see midbrain, then pons and medulla, and here is the cavity that is known as fourth ventricle, and posterior to it there is a cerebellum. अब ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो ये बताओ. ये पूरा अगर आंख में मैं स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करूं तो व्हाट इज दैट? You have done with third ventricle ना, so floor of third ventricle होगा या नहीं होगा? Because ये thalamus opposite side का thalamus, दोनों के बीच में जो कैविटी है that is third ventricle, and यहाँ पर क्या होगा? It is the floor of third ventricle, जो आप डायग्राम पढ़ चुके हो ऑलरेडी. क्लियर है इतना? नेक्स्ट, कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है ये भी पढ़ा हुआ है आपने. कोरोइड प्लेक्सस इज द ब्लड वेसल्स का कलेक्शन होगा जो कि वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है एंड किस में हेल्प करेगा? सीएसएफ प्रोडक्शन में. क्लियर? तो कोरोइड प्लेक्सस सारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होगा. उसके साथ साथ एक वर्ड आपने पढ़ा होगा टीला कोरोइडिया. पढ़ा सुना? टीला कोरोइडिया क्या है? एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर दैट इज लाइन बाय एपेंडाइमा. ठीक है? Tila choroidea is what? It is the extension of pia mater into the walls of ventricles, और उसके अंदर जो blood vessels का ग्रुप होगा that is known as choroid plexus. और जो आपका ये एपेंडाइमा है इस पूरे स्पेस को लाइन करके रखेगा. ठीक है? और choroid plexus का क्या फंक्शन होगा? वेंट्रिकल्स में जो CSF का प्रोडक्शन है उसमें ये हेल्प करेगा. तो मेनली मेजर अमाउंट ऑफ CSF इज प्रोड्यूस्ड इन द लैटरल वेंट्रिकल. ये देखो ये दिख रहा है ना कोरोइड प्लेक्सस है. अब सीएसएफ का फ्लो आपको मैंने बताया. फर्स्टली प्रोडक्शन का हुआ इन द लैटरल वेंट्रिकल, देन इट कम्स इनटू द थर्ड वेंट्रिकल वाया फोरामेन मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, देन इट approaches at the level of third ventricle, then with the cerebral aqueduct of Sylvius it goes to the fourth ventricle. Then you have three foramen Megendii and foramen of Luschka. Then it goes to the subarachnoid space. Then पूरा cerebrum की surface पे आएगा और surface के ऊपर आने के बाद यहाँ पर arachnoid granulations are there or absorbed into the superior sagittal sinus. So it is the flow of CSF. ये देखो फर्स्टली यहाँ प्रोडक्शन हुआ, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ये है, इससे ये थर्ड वेंट्रिकल में आया. पीछे बातें नहीं करो थोड़ी थोड़ी देर में. क्या हो रहा है ये पीछे? लास्ट खड़े हो जाओ, स्टैंड अप. क्या हो रहा है ये? यस यू हाँ आप ही. क्या आ रहा है? थोड़ी देर खड़े रहो. Then it goes to the fourth ventricle, then subarachnoid space, then यहाँ पर पूरी superior surface पे आएगा. Here is the presence of arachnoid granulation and it goes into the superior sagittal sinus. ये देखो arachnoid granulation कैसे होते हैं, अगर आपने ब्रेन देखा होगा तो यहाँ पर ऐसी ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है अलोंग द जो आपका फिशर है ऊपर वाला जो सेंट्रल फिशर आप जहाँ पर क्या होता है फॉक्स सेरिब्राई होता है वहीं पर आपको ये ग्रेन्युलेशन दिखेंगे. दीज आर एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन और क्या करते हैं इनका फंक्शन? अब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ में हेल्प करते हैं. सो दिस इज. अब चलते हैं अपन वन बाय वन लैटरल वेंट्रिकल में क्या होता है. फर्स्ट डायग्राम से आप देखो, ये है आपको दिख रहा है लैटरल वेंट्रिकल, दिख रहा है सबको. इट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर हॉर्न, बॉडी और सेंट्रल पार्ट, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न. ठीक है? अब आपको क्या करना है नेक्स्ट कि इट इज अ कैविटी जो कि पूरी सराउंड करेगी आपकी थैलेमस. बैठ जाओ, अब बातें नहीं करना. सराउंड करेगी पूरी थैलेमस को, लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस को एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस को. इट इज लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल एंड इट इज फिल्ड विद द सीएसएफ. सो सी शेप्ड कैविटी है ये पूरा. दिस इज द lateral ventricle. It is having this anterior horn, central part and posterior horn and this inferior horn. So anterior horn extends कहाँ करेगा? It extends into the frontal lobe. Posterior horn extend कहाँ करेगा?
ऑक्सीपिटल लोब में। एंड इंफीरियर हॉर्न कहाँ होगा? मैडम इसको जगाओ, क्या चल रहा है ये? हाँ जी आगे आइए आप, स्टैंड अप, यस यू। इसमें जो कैपेसिटी होगी CSF की वो 7 to 10 ml प्रेजेंट होगा। क्यों, नींद आ रही थी क्या? तो आइज क्यों क्लोज कर रखी थी? लास्ट में ना पूरा लेक्चर सुना के जाना। हो गया? सी दिस डायग्राम, ये आपने देखा हुआ है। इस सेप्टम पैलुसिडम को जब आप रिमूव करोगे तो आपको क्या दिखेगा? लैटरल वेंट्रिकल की कैविटी दिखेगी। तो ब्रेन की इमेजिनेशन, तुम थोड़ा सा ब्रेन को रिकॉल करो, क्योंकि सारे जो रिलेशंस हैं वो इसी से एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो मैं फर्स्ट तुम्हें जनरल बेसिक बता रही हूँ, फिर रीड करना है आपको। सी, ये क्या है? आपका फ्रंटल पोल है, ये ऑक्सीपिटल पोल है, एंड दिस इज टेम्पोरल पोल। यहां से इसको कट करोगे तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। अगर आप यहां से कट करोगे तो ये क्या है? सेंट्रल पार्ट और बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। पोस्टीरियरली इफ यू कट फ्रॉम हियर, इट इज द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। तो जब आप यहाँ पर ही देखो एक बार, ये एंटीरियर हॉर्न है, इसको मैंने कट किया। जब कट सेक्शन आप देखोगे, कोरोनल सेक्शन होता है, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। इसमें देखो वॉल्स क्या होंगी, इसमें रूफ दिख रही है आपको सबको? किससे फॉर्म हो रही है? किससे हो रही है? कॉर्पस कैलोसम से। यहां पर आप देखेंगे इसकी एंटीरियर वॉल किससे फॉर्म हो रही है? ये क्या है? जेन्यू ऑफ कॉर्पस कैलोसम। एंड हियर, यहां पर जो स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो रही है, दिस इज रोस्टम। सो इट इज फॉर्मिंग फ्लोर ऑफ anterior horn of lateral ventricle. So you have roof, it is formed by corpus callosum. You have anterior wall, it is formed by rostrum of corpus callosum, and you have floor, it is formed by the genu of corpus callosum. इतना समझ में आया इतने से? नेक्स्ट अगर आप देखोगे, सेंट्रल पार्ट को कट किया आपने यहां से, so you have roof, it is formed by corpus callosum. Floor is formed by, यहां पर क्या आया आपके? fornix आ गया। So floor is formed by fornix. Medially क्या आ रहा है आपके? What is this? Septum pellucidum। और फ्लोर में आपके मेन तो थैलेमस आएगा, उसके साथ साथ कॉर्डेट न्यूक्लियस और एक दो स्ट्रक्चर्स और होती हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली जनरल उसमें देखेंगे तो रूफ ऑफ सेंट्रल पार्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉर्पस कैलोसम, मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय सेप्टम पैलुसिडम, फ्लोर फॉर्म में क्या होगा? थैलेमस होगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस होगा। एक सेकेंड, इनको सबको आता है पहले से ही ना, उनसे पूछती हूँ एक बार। हाँ जी, पता है आपको सबको, जो आप धीरे धीरे कर रहे हो? चुपचाप साइलेंटली सुन लो। तो रूफ फ्लोर इज फॉर्म बाय थैलेमस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, वन अनदर स्ट्रक्चर इज देयर, स्ट्राया टर्मिनालिस एंड थैलेमोस्ट्राइट वेन। These structure are producing floor of this central part of lateral ventricle. फोर्थ, अब आप इसको डायग्राम वाइज पढ़ो। देखो ये कम्युनिकेशन आपको पता है पूरा, एंटीरियर हॉर्न पे चलता है। ईच लैटरल वेंट्रिकल हैज 4 पार्ट, सेंट्रल पार्ट, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न। देन सी दिस डायग्राम, ये एक लिंक है, इसको आप नोट करो या एक जना क्लिक कर लो, इसमें ब्रेन के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, सो यू कैन गो थ्रू दिस। एक जना फोटो क्लिक कर लो बस। एक हो गया बेटा, हो गया, शेयर कर देना। नाउ कम टू द सेंट्रल पार्ट। इफ वी कट दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर विद दिस line, so see what is that? First, extension of central part of ventricle, lateral ventricle is lies within the parietal lobe, ठीक है। anterior horn lies in the front lobe, posterior horn lies in the occipital lobe, and the inferior जो lobe है that is lying in the temporal lobe। ये सबको clear है। so now see the extension of central part। front में it extends behind the interventricular foramen, and posteriorly it extends up to the splenium of corpus callosum, ठीक है। anterior extension कहाँ तक है? interventricular foramen, and posteriorly it extends up to the splenium of the corpus callosum, and it lies in the parietal lobe।
जब सेक्शन कट करके देखोगे तो सेक्शन में यू हैव, मैंने आपको पहले ही बताया, ट्राइंगुलर इन शेप होगा एंड इट इज हैविंग मीडियल वॉल, रूफ एंड फ्लोर. ठीक है. नाउ सी दिस डायग्राम. दिस इज द रूफ ऑफ दिस lateral ventricle, the central part of lateral ventricle. It is formed by which structure? Corpus callosum. Now see the floor of this structure is formed by, देखो firstly कहाँ से start करेंगे? Lateral to medial. So here is the body of caudate nucleus, stria terminalis, thalamostriate vein and the thalamus, and above it here is the choroid plexus. These all structures are forming floor of this central part of lateral ventricle. याद है सबको? Roof is formed by corpus callosum, while floor from lateral to medial side is formed by the body of caudate nucleus, stria terminalis, thalamostriate vein, and then thalamus, and the superior surface of the thalamus, medially it is covered by the choroid plexus. So see these boundaries. Now the medial wall आप सबको पता है, आपने जब सेक्शन कट करके देखा तो सेंट्रल पार्ट मीडियली क्या था वहां पर? सेप्टम पैल्यूसिडम. So these all are the boundaries of central part of lateral ventricle. Clear है सबको? सबको clear है? नहीं है तो बोल दो अभी भी. Next, ये वही डायग्राम है, एक बार इसको देख लो अच्छा से. This is roof, this is floor and this is medial wall. And between two thalamus, यहाँ पर भी thalamus लगा दोगे तो ये कैविटी क्या है? What is that? Third ventricle. देखो अच्छे से डायग्राम. सेंट्रल पार्ट की कौन कौन सी वॉल्स हैं? वॉल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है इन द सेंट्रल पार्ट? बोलो. हाँ, रूफ, फ्लोर एंड मीडियल वॉल. रूफ इज फॉर्म्ड बाय, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय, बोलो, बॉडी ऑफ caudate न्यूक्लियस. अच्छा, व्हाट इज स्ट्राया टर्मिनालिस? अभी तुम आगे पढ़ोगे, फोटोग्राफी नहीं करो बेटा. बॉडी ऑफ व्हाट इज स्ट्राया टर्मिनालिस? दीज आर व्हाइट फाइबर्स फ्रॉम द एमिग्डालॉइड बॉडी. ठीक है, आगे जब लिम्बिक सिस्टम पढ़ोगे तो तुम्हें पता होगा व्हाट इज द स्ट्राया टर्मिनालिस. सो सिंपली दीज आर द एक्सॉन्स और व्हाइट फाइबर्स फ्रॉम द एमिग्डालॉइड बॉडी. नेक्स्ट चलते हैं. नाउ सी द एंटीरियर हॉर्न. एंटीरियर हॉर्न की मैंने सारी बाउंड्रीज आपको ऑलरेडी बता दी हैं, क्योंकि वहां पर जो सेक्शन आपका सजाइटल सेक्शन था उसमें आप समझ चुके हो कि क्या होती है. सी द एंटीरियर वॉल में क्या होगा? रूफ में क्या था आपके? कॉर्पस कैलोसम था. लैटरल वॉल में क्या आ जाता है? वहां पर हेड ऑफ कॉडेट न्यूक्लियस आ जाएगा. फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द रोस्ट्रम एंड द मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेप्टम पैल्यूसिडम. So these all are the boundaries of the anterior horn of lateral ventricle. What are they? This is roof. It is forming by the corpus callosum. Lateral wall. Here is the it is formed by the body caudate nucleus. Head of caudate nucleus. Floor is formed by the rostrum, and the medial wall is formed by the septum pellucidum and the column of Fornis. And the anterior wall is formed by the genu of corpus callosum. तो आपको कॉर्पस कैलोसम के सारे पार्ट्स पता है क्या क्या होते हैं? बोलो. सबसे पहले अगर नीचे से स्टार्ट करोगे तो रोस्ट्रम होगा, बिकॉज वो फ्लोर में आ रहा है. रोस्ट्रम के बाद जो जेन्यू लाइक स्ट्रक्चर होगी, जहां पर वो होगा एंगुलेटेड पार्ट होगा, दैट इज जेन्यू. देन यू हैव एंटीरियर पार्ट, देन बॉडी होगी और देन स्प्लीनियम होगा, पोस्टीरियर पार्ट होगा. ये देख लो, इसमें ये वही पार्ट है एंटीरियर हॉर्न का. सुपीरियरली रूफ इज फॉर्म बाय कॉर्पस कैलोसम का एंटीरियर पार्ट, एंड द एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय जेन्यू एंड फ्लोर इज फॉर्म बाय द रोस्ट्रम. एंड द लैटरली ये क्या होता है? व्हाट इज दैट? हेड ऑफ कॉडेट न्यूक्लियस, एंड मीडियली इट इज फॉर्म बाय द सेप्टम पैल्यूसिडम. क्लियर? पीछे वालों को क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये जो डायग्राम है इसमें आपका क्या शो हो रहा है? एंटीरियर हॉर्न कहां से जा रहा है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से फ्रंट में फ्रंटल लोब तक जा रहा है. नाउ ये वही है. पोस्टीरियर हॉर्न. सी पोस्टीरियर हॉर्न का एक्सटेंशन बैकवर्ड्स होगा अप टू द ऑक्सीपिटल लोब. इसकी बाउंड्रीज में देखो क्या क्या होगा. इट इज प्रेजेंटिंग, यहाँ पर देखोगे क्वाड्रेंगुलर सेक्शन होता है इसका, डायमंड शेप सेक्शन होता है. इट इज हैविंग रूफ, मीडियल वॉल, फ्लोर एंड लैटरल वॉल. बहुत सिंपल है इसकी बाउंड्रीज. सी दिस, इसकी रूफ, लैटरल वॉल, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है और फ्लोर है, इट इज फॉर्म बाय द टैपिटम. टैपिटम क्या होता है?
What is tapetum? हाँ, What is tapetum? Corpus callosum पढ़ लिया? पढ़ा या नहीं पढ़ा? ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ये भी व्हाइट फाइबर्स है, जब व्हाइट फाइबर्स की क्लास में लूंगी तब बताऊंगी. These are the white fibers of internal capsule which are not intersected by corona radiata if we define them. ठीक है, पर मेनली आप अभी ये याद रखो, ये फाइबर्स है कॉर्पस कैलोसम से रन कर रहे हैं, और किस टाइप के फाइबर्स है? व्हाइट फाइबर्स है. एंड क्या फॉर्म करे? दीज आर फॉर्मिंग रूफ, लैटरल वॉल एंड फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ lateral ventricle. While the medial wall में देखो यहाँ पर two eminence आपको दिखेंगे. First is known as bulb of posterior horn and last जो नीचे वाला दिख रहा है that is calcar avus. जो bulb of posterior horn है, these are production क्यों हुआ ये? With the fibers of forceps major. What are forceps major? Forceps major और minor क्या होता है? ये भी white fibers हैं, ये भी white fibers की क्लास में पढ़ लो. क्या हो रहा है निखिल? What is happening here? So medial wall is formed by, bolo, forceps major fiber. They produce a bulb of posterior horn on the medial wall of lateral ventricle, posterior horn of lateral ventricle, and below to that there is a calcar avus, and it is produced by the calcarine sulcus. So in the posterior horn you have medial wall, lateral wall, floor and roof. Roof, floor and lateral wall produced by the tapetum, while medial wall is formed by the bulb of posterior horn and calcar avus. Clear है इतना? Now come to the inferior horn. It is situated in the temporal lobe. कहाँ होगा? Central part of body से जहाँ पर meet करोगे, और 2.5 सेंटीमीटर behind the temporal pole. यहाँ पर एक एरिया बनता है जहाँ पर ये मीट करते हैं, इसको बोलते हैं कोलेट्रल ट्रायगोन. क्या कहते हैं इसको? कोलेट्रल ट्रायगोन. ये लार्जेस्ट होगा और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है लैटरल वेंट्रिकल का. इसमें सिर्फ दो ही रिलेशन होते हैं, रूफ एंड फ्लोर. इस डायग्राम को देखो सब कुछ देखने से पहले. सी, दिस इज व्हाट ब्लू कलर स्ट्रक्चर. दिस इज द इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. स्ट्रक्चर्स रिलेटेड इन द रूफ ऑफ, इसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको? एमिग्डालॉइड बॉडी और टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस दिख रहा है आपको. दिख रहा है ये? व्हाट इज दैट? ये दिस बॉडी, ये आपको पूरी क्या दिख रही है? हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस. ये पूरा बॉडी आया और नीचे आके टेल बन गया. सो टेल कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द रूफ ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल ventricle. So roof of inferior horn of lateral ventricle is formed by the tail of cortex nucleus, while floor is formed by, see what is that? Hippocampus. So generally roof में क्या है? Tail of caudate nucleus and floor में क्या है? Hippocampus. Now come to this diagram. इसमें देखोगे आप रूफ में मीडियल पार्ट में यू हैव टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, लैटरली टैपिटम होता है. टैपिटम वही है जो आप पोस्टीरियर हॉर्न में पढ़ चुके हो. While in the floor lateral to medial you have hippocampus here and collateral eminence is also there which is formed by the collateral sulcus. अब आप मुझे एक चीज बताओ, what are the examples of complete sulcus? Collateral sulcus and complete sulcus के examples बोलो. कोलेट्रल क्यों है? क्यों है? जो भी सल्कस आपके लैटरल वेंट्रिकल में कोई भी प्रोजेक्शन कॉज करती है, दीज आर टर्म्ड एज कंप्लीट सल्कस. सो इन द इंफीरियर हॉर्न में एक प्रोजेक्शन कॉज हुआ कोलेट्रल एमिनेंस and that is caused by the collateral sulcus, while in the posterior horn there is another eminence that is known as calcar avus and that was due to the calcarine sulcus. So calcarine sulcus and collateral sulcus, these are the examples of complete sulcus. Clear है इतना सबको? So now another, see again, inferior horn, in the roof you have laterally tapetum and the medially you have caudate nucleus tail, and the floor lateral to medial, firstly you have collateral eminence here, then hippocampus and then choroid plexus. So these are the boundaries of inferior horn of lateral ventricle.
क्लियर है सबको इतना? ये बताओ कितने पार्ट्स है लैटरल वेंट्रिकल के? हाउ मेनी हॉर्न्स आर देयर? पार्ट्स आर देयर? 4 parts है. Anterior horn, posterior horn, inferior horn and central part. Now tell me the relations of central part. Firstly, tell the boundaries it is having. Roof, floor and medial wall. Roof is formed by, see again, roof is formed by corpus callosum. Floor is formed by लैटरल टू मीडियल एक साथ चल रहा, क्योंकि डायग्राम गलत नहीं कर सकते आप इसमें, है ना. सो बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, देन स्ट्राइड टर्मिनलिस, थैलेमस, स्ट्राइड वेन, थैलेमस एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ थैलेमस दैट इज कवर्ड बाय द कोरॉइड प्लेक्सिस. So these structure forming the floor of this central part of lateral ventricle. Medial wall is formed by the septum pellucidum. Now the anterior horn, relations of anterior horn are, बोलो 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 जल्दी से. Roof is formed by anterior part of corpus callosum. Anterior wall of formed by genu of corpus callosum. Floor is formed by rostrum of corpus callosum. Medial wall is formed by septum pellucidum. Now see the posterior horn here. See this. क्या क्या है इसमें? Roof, lateral wall, floor, these are formed by tapetum, while the medial wall is formed above by the forceps major fiber and produce what structure? Bulb of posterior horn, and below to that there is the calcar avus that is formed by the calcarine sulcus. Now see the boundaries of inferior horn. You have roof. In the lateral part it is formed by the tapetum, while the medial part is formed by the caudate nucleus, tail and the stria terminalis. इंफीरियरली आप रूफ फ्लोर देखेंगे, सो लैटरल टू मीडियल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो आप एक बार देख लो. एक मिनट चुप होते ही फिर चुप होते हो. मैं बोलती हूँ तो तुम भी बोल रहे हो, हंस रहे हो. क्लियर है सबको बाउंड्रीज ऑफ वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल? नेक्स्ट, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो कि आपको समझ में नहीं आता कि हिप्पोकैम्पस कैसे आ रहा है और कॉर्डेट न्यूक्लियस रूफ में कैसे आ रहा है. सो दिस इज हाउ इट इज कमिंग इन द रिलेशन ऑफ दिस लैटरल वेंट्रिकल. इस डायग्राम को वापस देखो एक बार. सी ये क्या है? पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. एंड मैंने क्या बोला था? फ्लोर में यू हैव हियर व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? व्हाट इज दिस? इज हिप्पोकैम्पस. एंड इन द रूफ यहाँ पर पूरा टैपेटम आ जाएगा ऐसे. Choroid plexus. Choroid plexus, firstly remember it lies only in the central part and inferior horn of lateral ventricle. Frontal horn, anterior horn और posterior horn में ये नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें लोकेशन अगर देखोगे तो anterior horn में ये absent है और posterior horn में भी ये absent है. Only inferior horn में and central part में you have choroid plexus. Now what is tila choroida? It is a bilamina folds of, and internal to that there is a choroid plexus, and choroid plexus है इसका ग्रुप है, क्या हेल्प करेगा? प्रोडक्शन ऑफ CSF. सो इतना ही बहुत है इसमें. Okay, choroid plexus is derived from the anterior choroidal artery, which is a branch from the internal carotid artery, and the posterior choroidal artery, it is a branch from the posterior cerebral artery. So ये याद रखना, choroid plexus of lateral ventricle is derived from the anterior choroidal artery and posterior choroidal artery. बातें फिर शुरू मत करो. ये हो गया आपका. अप्लाइड में ventricular system of brain can be visualized by CT scan, MRI, and if the proper drainage is not happening, वहां पर क्या होता है? हाइड्रोसेफेलस होगा. और हाइड्रोसेफेलस होगा तो उसमें क्या करते हैं आप? एक शंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं PV शंट. P for peritoneal and V for ventricular. So ventricular का जो excessive fluid है, it is drained into peritoneal cavity through this VP shunt or PV shunt. That's it. खत्म. अब तुम रिवाइज करो, कैसे करोगे? See these diagrams again. यही याद करके जाना है आपको, ये सारे रिलेशंस.
बात है नहीं, रिमेंबर देम, मैं लास्ट में पूछूंगी। हाँ जी बोलो। तो अभी 5-10 मिनट बाद डालना ना, जल्दी छोड़ दूंगी मैं, मेरे को पता है। पीछे डायग्राम्स देखो ढंग से, क्या डायग्राम शो हो रहा है स्क्रीन पे? सेंट्रल पार्ट जो इसमें देखो। अच्छा ये सेक्शन कौन सा है ये बताओ चलो। कोरोनल सेक्शन है, इट इज द कोरोनल सेक्शन। आप कल देखा नहीं था आपने, कल आपने हॉरिजॉन्टल बस साथ में एक रखा हुआ था, उसमें आपको ये पूरा वर्टिकली सेक्शन किया हुआ है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? फर्स्टली कॉर्पस कैलोसम, बात है नहीं पीछे, एंड मीडियली कॉर्पस, यू हैव सेप्टम पैलुसिडम, ये कैविटी दिख रही है, और फ्लोर में पूरा लैटरल थर्ड वेंट्रिकल एंड लैटरल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये है एंटीरियर हॉर्न। ये हवा बाद में कर लेना। श्रीकांत स्टैंड अप। हाउ मेनी ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल इज हैविंग? बोल बोलो। एंटीरियर, वहां पे एंटीरियर पूरा स्पेस दिख रहा है ना तुम्हें? स्वस्ति बोलो। कोई मतलब नहीं है ना तुम लोगों को पढ़ाने का? क्या डी एडिक्शन पढ़ रहे थे? फिर क्यों? अभी कितनी बार रिवाइज करा चुकी हूँ। देखो अभी, एंड सेंट्रल पार्ट के पता है? क्या कह रही हो? जितने अच्छे से पता है वो उतने बता दो। बताओ, बोलो, देख के तो बोल ही सकती हो। सेंट्रल वॉल्स है। अरे बोलो, तुम्हें ही याद रहेगा यार। दिख रही। साइड में नहीं, स्पेसिफिकली बोलो, ऐसे ही बताया था मैंने, साइड में ये बीच। हाँ बताओ, बाउंड्रीज ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। सुन लो, डायग्राम देखते चलो ये क्या बोल रहा है। व्हाट इज स्ट्राया टर्मिनालिस? कहाँ से जाते हैं? अब कर सकती हो? रूट फॉर्म बाय कॉर्पस फॉर्म बाय सेप्टम पैलुसिडम, thalamus straight vein, and then thalamus, and then
कोरोइड प्लेक्सस जो उसके ऊपर प्रेजेंट है। इस डायग्राम को देखो, ये चारों स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रही हैं, दीज आर फॉर्मिंग फ्लोर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। हो गया? अब कैसे हो गया? प्रेशर से। फिर बैठो, बैठ जाओ। तो एंटीरियर हॉर्न कौन बताएगा? वैसे तो क्लास तो टाइम नहीं मिलता। इसको खड़ा करो, येलो शर्ट। बहुत बातें कर ली। हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटा। देख के बताओ, चलो मैं तो कह ही नहीं रही, बिना देखे बताओ। देख के बताओ। वॉल्स ऑफ बातें, वॉल्स, ये हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। हाँ, समझ के भी बोलना, लेकिन बोलो एंटीरियर हॉर्न। ये तुम्हारे पास डायग्राम है, इसमें बताओ मुझे वेयर इज द जेन्यू लोकेटेड। इस डायग्राम में यहाँ पे कहाँ है जेन्यू? अपन कहाँ की बात कर रहे हैं? बुक तुम्हें बोल बोल के समझाएगी बाद में कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। क्लास में तुम्हें पूरे टाइम बात करनी होती है। कोई और बैठो, कोई और एक्सप्लेन कर सकता है एंटीरियर हॉर्न? अपने आप खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं खड़ा करती हूँ। खड़े हो जाओ बेटा, करो करो, देख के बोलो। कहाँ है इसमें जेन्यू और कहाँ है इसमें रोस्ट्रम? बताओ। वो रहा। क्लास से बाहर भगा दूंगी अगर पढ़ेगा नहीं, और वही वही हंस रहा है ना। सी, दिस इज एंटीरियर हॉर्न, पूरा ये एंटीरियर हॉर्न है। ये क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज दिस? दिस इज जेन्यू। ये है रोस्ट्रम, ये है कॉर्पस कैलोसम। तो रूफ ऑफ एंटीरियर हॉर्न किससे बन रही है इसमें देखो? किससे बन रही है? कॉर्पस कैलोसम से। एंटीरियर वॉल किससे जेन्यू से। किससे बन रहा है? रोस्ट्रम से। यही बोला ना मैंने। और लैटरली क्या आ रहा है? ये क्या है? ये स्ट्रक्चर हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। So these all are the boundaries of anterior horn of lateral ventricle. देख लो, पढ़ लो एक बार इसको। बहुत सिंपल क्लास थी जो तुमने कॉम्प्लिकेटेड अपने लिए कर ली। बैठ जाओ ना सुन के। यही याद रहेगा, आराम से ब्रेन को देखते सारी वॉल्स क्लियर हो जाती है। हो गया ये एंटीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न देखो। पोस्टीरियर हॉर्न कहाँ है इस ब्रेन में? इस जगह पे होगा, जो कि ऑक्सीपिटल पोल में गया है। अब देखो इसकी वॉल्स कैसे होती है पोस्टीरियर हॉर्न की। सी दैम, सिंपल है बहुत। ये कैसा सेक्शन दिख रहा है आपको? कौन सा सेक्शन है ये? दिस इज नॉट कोरोनल सेक्शन, इज दिस द सजाइटल भी नहीं है बेटा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें आपको पूरा पोस्टीरियर हॉर्न पीछे जाता हुआ दिख रहा है ऑक्सीपिटल पोल में। एंड लैटरल स्ट्रक्चर, रूफ, फ्लोर, ये सब इन स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रही है। Medially you have bulb of posterior horn and calcarine sulcus which is producing calcar avus in the lower part of medial wall of posterior horn of lateral ventricle. Clear? Inferior भी देख लो और खत्म करो। Done? Done? हो गया? अब इस डायग्राम को देखो और मुझे स्ट्रक्चर्स बताओ। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। व्हाट इज दिस? यहाँ पर क्या होगा? ये पूरा। नो, सेप्टम पैलुसिडम ये है। This is septum pellucidum, this is fornix. And what is that? This is the cavity of third ventricle, because on the each side it is having, what is that? Thalamus here. Now see the white fibers here, and these are of internal capsule. The internal capsule medially related above by this structure, that is caudate nucleus,
and in the lower part it is related medially with the thalamus, and laterally it is related with the lentiform biconcave structure होती है, lens like structure होती है, and that is known as lentiform nucleus. And external to that you have here external capsule, and this is the insula here, and these are the posterior horn of lateral ventricle. And अपन क्या बात कर रहे थे, जो tapetum अपन कर रहे थे, these all are the fibers, these are known as tapetum. Optic radiation जो कि आपकी कहाँ जा रही है, occipital lobe में जा रही है. So roof, lateral wall, these all structures are produced by this structure, white fibers, that is known as tapetum. And here you have posterior bulb of this ventricle, and that is produced by these white fibers, and these are of forceps major fiber. And here is the calcarine sulcus, and it is producing calcar avus on the lower part of the medial wall of the lateral ventricle. Clear है सबको? कहीं कोई doubt है?